See, we started with second part of the chapter, that is electromagnetic induction, right? Electromagnetic induction. यहाँ से हमने शुरू किया. इसमें फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे. फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स. उसके बाद हमने वहां से उसके कंक्लूजन देखे. राइट. कंक्लूजन में एक देखा था change in magnetic field. Change in magnetic field is responsible for electromagnetic induction. फिर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ना भी चेंज हो तो भी electromagnetic induction हो रहा था. So what was conclusion? Conclusion was change in magnetic flux is responsible for electromagnetic induction. Change in magnetic flux is responsible for इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये हमने देखा था. फिर सवाल ये आया था व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. क्वेश्चन वाज व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कांसेप्ट एज if there is a magnetic field in a region, if there is a magnetic field in a region, let us remember B, right? So यहाँ पे एक magnetic field है. Now if there is a magnetic field, then there are magnetic field lines in the region, right? Magnetic field है, therefore there are magnetic field lines in the region. Magnetic field होना मतलब magnetic field lines are present. Lines are present in region. See, yeah. Magnetic field है तो magnetic field lines है, right? अब magnetic field lines है तो if I जहाँ पे याद है stronger is field, denser, closer are lines. Stronger is field, closer are line. Closer are field lines. Remember this? Stronger is field, closer are field lines. सब याद है ना? Okay. So if I place some area, in magnetic field, so this area is immersed in the magnetic field. Some of the lines, magnetic field lines, will cross through this area. That means some of the magnetic field lines will intersect this area. Some of the magnetic field lines will intersect this area. True? Hello? Hello? Yes, sir. तो बीच में respond करो, कहाँ चले जाते हो? Yes, sir. So if there is a magnetic field in this region, समझो यहाँ पे magnetic field है, ऐसा magnetic field है, right? और उसमें मैं अगर कुछ area रख दूँ, if I place some area in this magnetic field, right? Then some lines will cross through this area. Some lines will cross through this area. So the number of field lines passing through any area is flux associated or flux linked with that area. ठीक है? तो magnetic flux क्या होता है? Magnetic flux last class में मैंने explain किया था. Magnetic flux linked with an area is total number of magnetic field lines passing
through that. So magnetic flux linked with an area is total number of magnetic field lines. Total number of magnetic field lines linked with that area. I'll repeat. किसी भी एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक एरिया रख दिया, इस एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, 100 जा रही है तो इससे फ्लक्स हो गया 100, 200 जा रही है 200 लाइंस, सो फ्लक्स थ्रू इट इज 200. ऑलराइट? यस सर. जहाँ ओके, सो अभी देखना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. If I keep an area here and then keep the same area here, किससे ज्यादा लाइंस क्रॉस करें? सेम नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, सेम साइज का एरिया है, बट अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, तो किससे लिंक्ड एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है? लेफ्ट वाले से या राइट वाले से? सर लेफ्ट. लेफ्ट वाले का फ्लक्स ज्यादा है, तो फ्लक्स थ्रू एरिया 1, और इधर पे मैं लिखता हूँ फ्लक्स थ्रू एरिया 2. So flux through the area 1 is greater than flux through the area 2. All right? ये फ्लक्स दोनों का अलग अलग है. चलो, ये हो गई कहानी फ्लक्स की. आप देखो, so flux through area 1 is more than flux through the area 2. So magnetic flux अगर सेम एरिया सेम इंक्लिनेशन में, ओरिएंटेशन में, आप जहां पे फील्ड स्ट्रांग है वहां रखोगे तो फ्लक्स ज्यादा होता है, दूर रखोगे तो फ्लक्स वीक होता है. नहीं, अब फ्लक्स बहुत सारा डिस्कस करेंगे. सपोज जैसे मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ से लाइंस निकलती हैं, साउथ से नॉर्थ में जाती हैं. ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं. तो ये देखो, अभी एक एरिया मैंने यहाँ रखा, हाँ, यहाँ पे ये कॉइल है, लेट अस अज्यूम देयर इज अ कॉइल, ये कॉइल यहाँ रखी है. इससे फ्लक्स ज्यादा है या इससे फ्लक्स ज्यादा है? किससे फ्लक्स ज्यादा निकल रहा है? लेफ्ट वाले से या राइट वाले से? सर राइट वाले से. राइट वाले से ज्यादा है, नहीं तो F2 is greater than F1. ठीक है, अब देखो, ये कॉइल है, इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, there's a current in this coil, right? ऐसा करंट होने की वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड है इससे एसोसिएटेड. ठीक है, इसके पास एक कॉइल रखी है, इसमें फ्लक्स ज्यादा है, और अगर मैंने इसका करंट बंद कर दिया, इसका करंट सडनली बंद कर दिया, तो फ्लक्स ज्यादा होगा. जब ये सर्किट क्लोज्ड है तो फ्लक्स 1 है, व्हेन सर्किट क्लोज्ड, और बाद में हटा दिया तो फ्लक्स 2 इज व्हाट? करंट इन सेकंड कॉइल इज 0. करंट इन सेकंड कॉइल इज 0. और Φ1 क्या है? करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लोज इन सेकंड कॉइल, फ्लोज इन कॉइल 2. So in which case the flux will be more in the second coil? ये वाली कॉइल में किस केस में फ्लक्स ज्यादा हुआ? जब इसमें करंट है या जब इसमें करंट नहीं है? जब करंट नहीं है. करंट नहीं होगा तो इसमें फ्लक्स कैसे आएगा? सुमन कैसे बोल रहे हो? तो शायद करंट जब होगा, जब इसमें करंट होगा ही नहीं तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो इसमें फ्लक्स कहां से आएगा? फ्लक्स कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई एरिया रखोगे ना, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, फिर फ्लक्स ही नहीं है. तो पहले बार में ज्यादा है जब भी, अरे अभी इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इस कॉइल से कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है.
अब इसको आपने स्विच ऑफ कर दिया, इसमें करंट ही नहीं है, तो उसका Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड ही गायब हो गया। हाँ, Yes, sir. नहीं। एक आखिरी केस, if there's a uniform magnetic field, हर जगह same density aligns, right? And there are two areas. One is, इसमें क्या है, field is normal to coil, and यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसा कर दो, फील्ड इज पैरेलल टू द कॉइल, ऐसा फील्ड इज पैरेलल टू कॉइल, इसमें फ्लक्स 1 है, इसमें फ्लक्स 2 है, फील्ड इज पैरेलल टू कॉइल। बताओ किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, उससे किसमें केस में ज्यादा लाइंस कट करके जा रही, जब फील्ड के पैरेलल है या फील्ड के परपेंडिकुलर। देखना, अगर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पहला केस है, ऐसी लाइंस ऐसे जा रही ऐसे, और दूसरा केस ये है, लाइंस ऐसे जा रही पैरेलल। तो इस केस में फ्लक्स ज्यादा है या इस केस में फ्लक्स ज्यादा है? ये दोनों केस में सेम है। हेलो, क्वेश्चन समझा? एक बार Yes, और sir. repeat कीजिए। See, there is a magnetic field in this region. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, राइट? मैंने ऐसा एक एरिया रख दिया, तो अभी फ्लक्स Sir. ज्यादा है, या ऐसा कर दिया तो फ्लक्स ज्यादा सर है? जैसे आप परपेंडिकुलर लिखे हैं तो ज्यादा फ्लक्स है, पैरेलल में कम फ्लक्स होगा। पैरेलल में इनफैक्ट जीरो हो जाता है, सीधा निकल गया, लाइन कट ही नहीं करती है, राइट? तो इस केस में F1 में फ्लक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू F2। इनफैक्ट F2 में तो फ्लक्स जीरो ही हो जाता है। ओके, तो कैन यू विजुअलाइज मैग्नेटिक फ्लक्स? कैसे विजुअलाइज करना आपको? आपको सोचना है क्या, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, there are magnetic field lines, okay, some area is placed in it, okay, when the field lines intersect the area, when field lines intersect the area, तभी उससे जो कितनी lines कट करके जा रही, that gives flux. So flux through any area is the total number of magnetic field lines passing through that area. Is it clear? हो गया? Yes, sir. Yes, Okay, sir. चलो यहाँ पहुंच गए। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करा सकते हैं? सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स? हाँ तेजस, तेजस कोई डाउट पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, ओके। सी, by changing magnetic field, यहाँ एरिया रखा हुआ है, चलो कॉइल बना देता हूँ, कॉइल आपको समझ में आएगा। दरअसल कॉइल, ठीक है, अगर आपने यहाँ नॉर्थ पोल रखा है, इफ यू मूव दिस नॉर्थ पोल हियर, तो उससे लिंक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? ये नॉर्थ पोल को इधर लेके आओ तो फ्लक्स चेंज होगा। हेलो, Yes, sir. ये क्या बात हो गई? अरे Sir, आपने यहाँ से आगे लेके आए तो फ्लक्स Yes, चेंज sir. होगा। तो फ्लक्स क्यों चेंज change होगा क्योंकि यहाँ सर का फील्ड उसका ही वो, बदल गया, यस सर, फील्ड लाइंस जो पास, फील्ड बढ़ गया, फील्ड स्ट्रांग हो गया। पहले फील्ड जो कॉइल से एसोसिएटेड था वो कम था, लाइंस दूर दूर थी, लेसर लाइंस इंटरसेक्ट द कॉइल। नाउ वंस यू मूव क्लोज टू कॉइल, व्हेन यू मूव क्लोज टू कॉइल, ऐसा इधर चलेगा तो मोर लाइंस क्रॉस टू दिस कॉइल, सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज मोर, इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक। If you move away, then flux is reduced. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके आप फ्लक्स कर सकते हैं by changing area immersed in
फील्ड। फ्लक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय एरिया इमर्स्ड इन फील्ड। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, राइट? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है inwards. There is a coil which is partially outside the field, partially inside. If you move the coil out of the field, तो उससे जो फ्लक्स है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सेम? सर आप जरा रिपीट कर सकते हैं? My question is, if there is a magnetic field this way, Yes, and sir. there is a rectangular coil, partly in outside, partly inside. Now, if I Yes. move this coil outside towards तब right, फ्लक्स कम then होगा। So flux कम होगा। फ्लक्स कम होने लगेगा, फ्लक्स चेंज होने लगेगा, राइट? तो फ्लक्स रिड्यूस होगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय changing magnetic field. Flux can be changed by removing area, that is changing the area immersed in the field. Finally, by rotating a coil in magnetic field, ये सबसे important है हमारे सिलेबस में, by rotating magnetic field में rotating coil in magnetic field. कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? अभी अंदर की तरफ. Now what you have to do is, there's an area, there's a coil this way, you rotate it about this axis. As you rotate the coil, magnetic flux linked with it goes on changing. This is a magnetic field, अंदर की तरफ magnetic field है, ये कॉइल है, इसको रोटेट करो, इसका फ्लक्स कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बढ़ने लग गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, फुल हो गया, कम हो रहा है, जीरो हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम होने लग गया, जीरो हो गया, राइट? ऐसा रहेगा तो फुल मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, ऐसा हो गया तो जीरो, राइट? तो फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Shall I repeat? Okay. So how can we change magnetic flux? पहले आपने समझ लिया magnetic flux क्या है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. फिर आपने समझ लिया कि magnetic flux change कैसे करते हैं, कैसे कैसे change कर सकते हो. What are ways of changing magnetic flux in your syllabus? One is you can change magnetic field. How? If you move a magnet closer to a coil or away from the coil, magnetic flux associated with the coil changes, right? Other ways, by changing area immersed in the coil, field, by changing area immersed in the field, right? Now, third and the most important one, which is in our syllabus, is rotating coil in a magnetic field. There's a uniform magnetic field, there's a coil inside, rotate it. As you rotate it, flux linked with it goes on changing. जब भी field is perpendicular, the flux is maximum. When field is parallel, flux is zero. These are the three ways of सर changing. रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेट, तो सर उससे फ्लक्स को क्या होगा? ये कॉइल को आप रोटेट करोगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, चेंज होता रहेगा सर. तो बस वही तो. सर, चेंज सर, कैसे? मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के तीन मेथड हैं. One is by varying magnetic field. The second is by varying area immersed in the coil field. Third is by rotating the coil. Okay, चलो अब चलते हैं Faraday's law. Faraday's laws of electromagnetic induction. Finally, Faraday ने क्या conclude किया? पहले Faraday को लगा it is magnetic field which is changing, hence there is EMF induced or current induced in the coil. But बाद में उन्होंने देखा वो चक्कर नहीं, कुछ और है. So finally they concluded it's magnetic flux which is varying. As a result, EMF or current is induced in the coil. So what he concluded,
EMF induced या current induced EMF or current induced in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux passing through it, linked with coil per unit time. Right? Actually, इसके पहले भी एक स्टेटमेंट था, वो लिखना भूल गया मैं. Whenever magnetic flux linked with the coil is varied, current is induced in the coil. And second law है, ये first statement है. Then this is the second statement. First statement is whenever magnetic flux linked with a coil is varied, is changed, current is induced in the coil. I'll repeat. Whenever magnetic flux linked with a coil is varied, current is induced in the coil. ये coil रखा हुआ है. This is a coil, right? अगर इससे linked magnetic flux कैसे भी करके आपने change कराया, तो इसमें induced current आएगा, इसमें current flow करेगा in one of the directions. I'll repeat. So second जैसे statement ही क्या है? अब बता. Wherever magnetic flux linked with a coil is, current is induced in the coil. इससे linked जो flux है वो आप change कराओगे, कैसे भी change कराओ, by rotating it, by pulling the coil outside the field, by reducing the magnetic field or increasing the magnet, whatever way you know to change the magnetic flux linked with that coil, follow that. Just change the magnetic flux associated with the coil. One, change the flux associated with the coil, and what you will see is EMF or current is induced in a coil, right? अब कितना करंट आएगा किस पे डिपेंड करता है, तो वो लिखा हुआ है करंट इंड्यूस्ड और EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil per unit time. ये quantitative idea देता है, right? This is quantitatively कितना EMF induce होगा, and this is qualitatively ये बताता है कब इंड्यूस होगा, right? ये बताता है कब इंड्यूस होगा एंड ये बताता है कितना इंड्यूस होगा, राइट? सो कभी इंड्यूस हो, कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट कभी इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कभी इंड्यूस होता है कॉइल में, तो आपको क्या बताना, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज वेरीड, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. फिर पूछेंगे कितना, वो इससे ये आपको 12th में ज्यादा यूज होगा, अभी आपके बुक में लिखा नहीं होगा, आपके बुक में सिर्फ यही लिखा होगा, राइट? सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज वेरीड, EMF is induced in the coil or current flows in the coil. Current is induced in the coil. And कितना करंट फ्लो होगा, ज्यादा तेजी से अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराया तो ज्यादा करंट आएगा. याद है आपको ऐसा, जब मैं नॉर्थ पोल पास में लेके आ रहा था, तो जितना स्पीड से लाऊंगा तो उतना ज्यादा करंट फ्लो, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ